व्यूअर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद है हुमायूं साहब और हम इनसे इनके लाइफस्टाइल और उनकी ज़िंदगी और इनकी हेल्थ और सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। इससे मेरे जहन में ख्याल है कि मिरर द वीक है, तो मुझे एक बात बताइए, सिंस यू हैव अ वर्क रूटीन एज वेल, तो मिरर द वीक के वक्त आके क्या बॉडी कंडीशंस होती हैं, क्या मेंटल कंडीशंस होती हैं? You know what, I always You look forward to weekend आ रहा है, no, weekend आ रहा है, you you know, know. एक चीज बड़ी important है which I found out because since probably 14-15 years I've been training. You know, it's probably the best thing which has happened in my life because what I believe is अगर आप training regular कर रहे होते हैं and every day आपके एक तो जो भी you know stresses होते हैं it just comes out. अच्छा, उसके बाद जब वीकेंड आ रहा होता है, सो यूर एक्चुअली आई डोंट ट्रेन ऑन वीकेंड्स, यानी सैटरडेज एंड संडेज आई डोंट ट्रेन. अच्छा, ठीक है. अच्छा, वो जो 5 दिन की वट एवर इन माई माइंड वट एवर इट रन्स एंड आई गो थ्रू दैट फिटनेस regime, it just, believe me, it just takes out everything. You know, it just like I feel fresh after. In fact, लोग बड़ी अजीब बात करते हैं कि जी एक्सरसाइज के बाद इंसान ने डाल, बट एक्चुअली आई फील तो हाँ, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है, एंड यू फील गुड. दूसरी बात ये है कि लोग जो सबसे बड़ी रिजीव में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि दे कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन जॉगिंग एंड व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रेनुअस फॉर योर बॉडी. द बेस्ट थिंग इज ईदर यू डू द बेस्ट थिंग इज ईदर यू डू स्विमिंग और ईदर यू डू वेट ट्रेनिंग, बिकॉज दिस वो आपके एक मसल टोन भी हो रहा होता है, आपके माइंड से जो आप जितना एफर्ट लगा रहे होते हैं, एंड इट्स नॉट एग्जॉस्टिंग. तो वो 5 दिन जो होते हैं ना, मुझे जो सैटरडे होता है, it's really fun. I mean, in fact, the whole 7 days, alhamdulillah, are absolutely the same. But the Saturdays I really enjoy, the Sundays I really enjoy, because I don't have to do the weight training thing, and I relax totally. So that is a very advantageous thing, exercise, because this makes your weekends also very good. और मुझे तो वीकेंड एक रिवॉर्ड की तरह लगता है फिर. Yeah, that's my eating days actually. Rewarding. Weekend आ गया, oh my you know, God. one thing I enjoy is my eating days. Because Saturdays and Sundays it's like I can have anything. I can, you know, have parathas. I can have anything. Aloo ke parathas, whatever. So that's those 2 days are like, I feel like it's my rewarding day. अच्छा, do you give time at home? Yeah. I घर actually पे कितना टाइम, मतलब बेबी पाते? नहीं, मेरा because my hospital is absolutely just probably 25 yards away. And 5 मिनट के रास्ते में भी लोग घर पे टाइम नहीं दे पाते. नहीं, मैं I give time to my kids because that is, I believe, it's very important for every father to give very good time to your children, because I think children look up to you. If you want to really have some impact on their lives, so that for the future they grow in a very positive manner, the fathers have a very very important role. Mothers, absolutely, that's the prime importance, but father, in fact the children, most of the children look up to their father. आपकी वाइफ जो है वर्किंग वाइफ है? नहीं, हाउसवाइफ. Yeah. तो मतलब काफी अटेंशन, थैंक गॉड, फिर वो बच्चों को दे देती है. बच्चे, yes, mashallah, this is what I always wanted, कि knowing me, I never, you know, I'm sort of a very carefree guy. So I just thought, Okay. I just thought the wife should be totally homely and should take care of the kids. And I wanted as many kids as God gives me. I mean, I don't have any. I wish I could have. My father were 9 brothers and 1 sister. Oh my. I wish I could break that record. You know. Okay, can that's imagine. like some planning. That's like It's some planning. probably required 2 marriages. No. Do you believe? नहीं, आप एक Or ही कर सकते हैं. one is enough. One is enough. नहीं, for probably 10 But is anyway, हम लोग we don't usually promote such things because mother की health हमारे लिए बहुत matter है ना, करती है. तो इसलिए 2 जरूरी हैं. आप इसके लिए कोई भी चीज निकाल ले. क्यों नहीं, why not? 2, इसमें कोई. If your first wife agrees तो फिर हाँ, आप कर बिल्कुल. लीजिए. My first wife has got no problems. She's gonna Will be having no जाके problem. कर ले दूसरी, मतलब क्यों we नहीं? have no issues, you know. क्या? चलिए, गुड, एटलीस्ट प्लानिंग में कुछ तो है कुछ इस तो है ना? तरह का. फैमिली प्लानिंग के अलावा और कैसी प्लानिंग है लाइफ अच्छा, में? planning, I always believe. Listen. Do you believe in plans? No. Listen. तो फैमिली प्लानिंग भी Destiny, and when a man proposes, God disposes. मतलब बात ये है कि इंसान, हम कौन है planners? Who are we to plan? मैंने ये एहसास किया कि जब मैं, I was always कि लो फैमिली प्लानिंग को एग्जिस्ट करती है और बड़ी काम की चीज़ होगी. But I believed कि once I had my kids, first, second, third, fourth,
God really gave me whatever I really wanted. It's really मेरी किस्मत ही खुली है उनसे. So why should I stop it? I mean, it's just. नहीं, it's just that if you can afford it and if you think you can do the proper वो है ना, brought up, आप बच्चों वो का है ना कर आज सकते आज हैं, का एक why not? अंग्रेजों का एक बड़ा एक कमाल है कि वो जो अंग्रेजों ने हमें फीड किया है कि छोटा घराना, वो क्या है, छोटा कुंबा खुशहाल घराना. नहीं देखिए, ये एक्चुअली हमारे यहाँ जो बेसिक लोग और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और ऊपर से हेल्थ की कंडीशन ऐसी है कि उस पे गरीब लोगों का ज्यादा तकवा है बनिस्बत अमीरों से. मतलब छोटा पुराने ज़माने में होता था कि बड़ा घराना खुशहाल बुढ़ापा. तो गरीब जो है ना उसको अल्लाह पे ज़्यादा तकवा है, वो इसकी पैदा मतलब मेरी अच्छा नज़र सही, में. आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. मुझे सिर्फ एक बात बताइए, हम लोग कहते हैं, अब देखिए हम बड़ी लंबी बहस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब इन्होंने मुझे पुश कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती. हम लोग कहते हैं जो आता है अपना रिस्क लेकर आता है, और बिल्कुल, जी बेशक. अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इतने सारे लोग रोजाना रात को भूखे पेट नहीं सोते. या आपकी हुकूमत, आपकी नहीं, सब अल्लाह ने रिस्क दिया ना, कहाँ गया रिस्क? आपको पता है इट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट. दिस रिसोर्सेज अल्लाह ने पैदा किए हैं. देखिए अब मैं एक बात जानता हूँ, जितने आपके मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो यूज होते हैं. देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो जो चीज हमारे हाथ में आपको लेना पड़ेगा अपने हाथ में. कैसे? देखिए अभी आप कुछ कर सकते हैं, बेचारे जो सड़क पे भीख मांग रहा है वो कुछ कर सकता है. वो नहीं तो वो ये कर सकते हैं कि वो बच्चे ना पैदा करें. जो हम जैसे लोग हैं, हम नहीं क्यों करें उसके ऊपर, क्यों बेचारे के ऊपर इनहिबिशंस. हम लोगों का फर्ज बनता है. ब्रॉटअप कर सकते हैं. देखिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो बच्चा आप प्लान कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर ब्रॉटअप, उसको तब पैदा कीजिए जब आप उसका प्रॉपर ब्रॉटअप कर सकते हैं, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं हर तरह से. उस बेचारे का क्या नहीं कसूर रख है? सकते उस तो फिर आप बेचारे नहीं का क्या पैदा कसूर है? करें. जो उसको पैदा हो एक रहा है खुशी, उसका क्या कसूर है? उसको आप एक खुशी जो कि दुनिया की सबसे, मुझे पता है बीइंग अ फादर एंड बीइंग अ पेरेंट कितनी बड़ी खुशी है इस दुनिया की. ये कॉन्वर्सेशन हम लोग ना शो के बाद ये तरह बात लंबी इस करने दुनिया की वाले सबसे बड़ी खुशी ये है, कुछ नहीं है इसके अलावा, ना दौलत ना शोहरत, कुछ भी नहीं, नथिंग. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, गॉड गिव मी एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह. माशा नहीं, यू दिस इज आई बिलीव. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अमीरों को ज्यादा प्रॉब्लम है, गरीबों को प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अमीर एक्चुअली अमीर सिर्फ अपना सोचता है. गरीब जो है ना वो ज्यादा सोचता है, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स है. जो मेरा मुल्क है वो एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए. वो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहीं पर नहीं है दुनिया में जितने इस्लामिक अच्छी कंट्रीज होंगी. सऊदी अरेबिया में आप वहां कोई लिमिटेशन थोड़ी है, लेकिन यू कैन हैव एज मेनी किड्स, यू कैन मैरी एज. बात ये स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल. सही. दिस इज. और हजरत उमर का जब तक यू रीड हजरत उमर, यू रीड द खुलफाए राशिदीन, you'll know what was our situation and how can we get back to that. That is important. I just hope we can. And being a Pakistani, we should realize that. अच्छा, आपको क्या मतलब पाकिस्तान में भी आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? पाकिस्तान में रह के क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, मैं एटलीस्ट इतना कर सकता हूँ कि लोगों को अवेयर करूँ. एंड आई वुड लव टू डू अ लॉट, बिकॉज मेरे मुल्क में जब तक मैं अगर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इन माई कंट्री, एंड आई जस्ट विश कि people should realize कि what is right and what is wrong. Our systems need changes. The system which we are existing is a false system, and it creates all the wrong people. Yeah. It has to be it promotes all the wrong people as well. जब तक meritorious society नहीं होगी, True that. और आप और हम इसमें ज़्यादा एफर्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो बेचारे, अब हम गरीबों की बात तो करते हैं लेकिन कुछ बाहर नहीं निकलते. We have to get out. We have to convince people. This is not the system which we are living. हमें तो एक materialistic capitalist society ने घेर लिया है. Capitalism is the worst form. अच्छा मुझे बात बताइए. We have to get out. We have to do something. Do what? First of all, you can start within your own self. You'll find a lot of people whom you can guide. अगर आपके पास financial support नहीं, अगर आप financially उनको support नहीं कर सकते, उनको emotionally and mentally support कर सकते हैं. By probably optimism. The greatest thing is being optimistic. Very nice. It's very easy to be pessimistic. यार ये बुरा है, वो बुरा है, this thing is wrong. It's a very convenient approach. Very bro, but you have to probably give them the way out. कि क्या है? What's the way? Either to sit at home and to let what is happening to what's happening to us, or either get out and make a change. अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं मतलब इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे यहाँ होता है, गेट आउट एंड मेक अ चेंज. हमारे यहाँ गेट आउट एंड मेक अ चेंज में जिस तरह आप देखते हैं टायर जल रहे हैं, लोग खड़े हैं, हंगामा हो रहा है, बट अगेन ये रोज़ाना की बात है, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ,
कहीं कोई उनका नोटिस कौन लेता है मीडिया कवरेज के लिए कि वो जी मीडिया कवर करी तो बस, और कुछ नहीं होता। देखिए उन बेचारों का कसूर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो हम आउटलेट गेट फॉर आउट देम। करके क्या करें फिर? वी बीइंग प्रिविलेज्ड ये पीपल, सब कुछ तमाशा करके वापस घर आके बैठ जाए। जब तक आप सोसाइटी देखिए, जब तक आप इस सोसाइटी में इक्वालिटी, इस सोसाइटी में जस्टिस, इट विल नॉट प्रिवेल, दिस विल बी रेगुलरली हैपनिंग। अगर एक बड़ा चोर है, उसकी अय्याशियां, एक गरीब आदमी चोरी करता है, वो जेल के अंदर बंद होता है। यू नो दैट इज द थिंग। हमारे मुल्क की जेल भरी हुई है इन बेचारे गरीबों से, उनको छोड़ दें आप। नहीं, मैं कह रहा हूं उनको भी छोड़ दे। मेरी जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि आप उनको छोड़ दो। वाई यू नो, कोई बेचारे ने अगर 5 रुपए की चोरी की है, 5,000 की चोरी की है, 10,000 की चोरी की है, उनको क्यों बंद कर रहे हो? उनको क्यों आप बंद कर रहे हो? उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि बिकॉज दे डोंट हैव द जैक, दे डोंट हैव द पीपल they know. No, that's very true. ये तो हो The रहा है। most important thing is that you have to create an examples. You have to roll at least 2,000 heads in Pakistan. Not rolling means to give इस मुल्क में आप एक इबरतनाक सजा, जब तक नहीं होगी डेथ पेनल्टी। I would, if somebody gives me a presidency, I'll say 2,000 people I need. Ouch. Yeah. Ouch. Believe me, that would No, remove but corruption. I think that's the way it should be done, और ये ही That's the way. That's Islamic. That's Islamic. Yeah, absolutely. That's There's no other way. There's no. I mean, if you say giving life sentences to people like these फायदा नहीं है criminals, इस चीज़ का, फायदा नहीं। useless. That's just a useless burden. और बिल्कुल लोगों के सामने अवामी अदालत चौराहे पर। व्यूअर्स, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है सेगमेंट का। हम लोग का जो कल एक का सवाल था कि क्या आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या पीना पसंद करते हैं? आप बताइए, आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? या एक हफ्ते में दो दिन, सैटरडे एंड संडे। बट डू यू थिंक इट्स गुड? एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। नो एक्सेस नहीं, मतलब उसके अंदर जो टॉरिन है और सब बाकी चीजें, डू यू थिंक इट्स गुड? इट्स हेल्दी? लिसन, अब इस दुनिया में पकड़ लिया मेरे वालिदैन को मैं कहता हूँ, मैं अपनी वालदा को कहता हूँ, शी इज माशाल्लाह सो सीनियर, माशाल्लाह अभी भी फिट है। मैं कहता हूँ द रीजन बिहाइंड इज दैट बिकॉज यू पीपल हैव टेकन प्योर थिंग्स। आज के जमाने में फ्रॉम डाउन टू अर्थ एवरीथिंग इज इम्प्योर, जेनेटिकली ग्रोन। पर अगेन हम लोग कभी भी फेवर नहीं करेंगे एनर्जी ड्रिंक को, बिकॉज वो बहुत डेंजरस होता है, ब्रेन स्टिमुलेंट है, जो कि उस वक्त आपके ऊपर काम कर जाते हैं, उसके बाद इन लॉन्ग रन जो होता है बड़े खतरनाक होते हैं। इसके ऊपर मैं एक शो करूंगी किसी एक दिन में, ज़रूर इसके ऊपर शो करूंगी, जिस तरह आज हमने पान गुटखा पे किया और आपको बताया कि किस तरह ये चीज़ें डेंजरस हैं, छोटी क्वान्टिटी में हो, कम क्वान्टिटी में हो या ज़्यादा में हो, तम्बाकू के साथ हो या बगैर हो, किस तरह ये डेंजरस हैं। इसी तरह हम लोग इस पर भी कभी बात ज़रूर करेंगे। हुमायूं को मुझे थैंक यू करना पड़ेगा। हुमायूं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। बहुत इनफैक्ट मुझे उनसे बात करने में बहुत मजा आया, क्योंकि हमारी बातें रूटीन बातों से हट के ना थोड़ी सी वहाँ चलेंगे, विच आई रियली लाइक। और ये आई थिंक हमारी बात चलती रहेगी, लेकिन यहाँ प्रोग्राम का टाइम मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के थ्रू, विच इज़ healthymorning@health-tv, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको जाके आप लाइक कीजिए और फिर इसकी वॉल पे आप हमसे 24 आवर कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी वक्त। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और नए इशू के साथ, और आज के पोल के जवाब के साथ, और एक और नए पोल के साथ। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।